Welcome to the channel Easy Trick for the computer science student and as well as those students who learn something new in the computer science field. So that particular video tutorial is available with the internet topic and the web designing field. Firstly, those students who learn about the web designing, that is really basic feature with the HTML, that is the hypertext markup language, and that is DHTML, dynamic hypertext markup language. These are the basic language of the scripting basis languages. And after that, the JavaScript, VB C hash, and ASP.NET, VB.NET, PHP, and many more languages, Perl, CGI, many more languages available for the scripting languages. So in this topic, we will discuss about that after you make the website, how to publish the website, and how to host the website. So what is the web hosting and what is the web publishing? We will discuss into this particular topic. So the web hosting is the, as per the name suggested, the typical internet hosting that allows one to make their websites available to the user on the World Wide Web using the internet on the global area, and it simply provides a space on the website throughout the web server so that your files or data on the website that can be stored on that particular phase. The best way to increase the growth of business and the user experience to web hosting, there are the few popular free web hosting platforms, that is the Hostinger and the Bluehost and etc. The free but the basically web hosting जब भी आपको करवानी है, जब आपकी वेबसाइट पूरी बन चुकी है, उसके लिए आपको इंटरनेट पे पूरी स्पेस जो है वो परचेज करनी पड़ती है एज पर द प्लान अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, कि आपके अपनी वेबसाइट के अंदर डेटा कितना है, कंटेंट कितना है, उसको अगर आप वर्ल्ड वाइड पे रिलीज करना चाहते हो या डोमेन फिक्स करना चाहते हो इन द सब डोमेन, इट इज इन इफ इट इन द इंडिया, इन द यूके, इन द यूएसए or in any other country, or if you entered into the global area in the world wide web, उसमें आपकी hosting के charges अलग अलग लगते हैं. हर कंट्री के अपने चार्जेस हैं एज पर द रूल. द बेसिक चार्जेस स्टार्टिंग फ्रॉम द 4000 टू टिल मैक्सिमम चार्जेस डिपेंडेंट ऑन योर कंटेंट. उतनी स्पेस आपको वेब होस्टिंग की जब मिलेगी इन द वर्ल्ड वाइड वेब पे, वो टोटल सर्वर में स्पेस मिलेगी, ताकि होस्टिंग के टाइम के ऊपर आपको एक यूजर लॉगिन दे दिया जाएगा और आपका पार्ट जो है उस पर प्लग इन कर दिया जाएगा. जो ये दो होस्ट प्लेटफॉर्म्स आपको बताए जा रहे हैं, ये होस्टिंग और ब्लू होस्ट, ये फ्री है. इस पे आप कोई भी छोटी मोटी अपनी वेबसाइट डाल के फ्री डोमेन लेके, आईपी एड्रेस फ्री लेके उसको डिटेल में डाल सकते हो. आईपी एड्रेस इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एंड इट इज द वेरी कंसाइजेबल एड्रेस फॉर द एवरी वेब होस्टिंग. जब आपको होस्टिंग मिल जाएगी तो आपको एक वेबसाइट का नेम भी मिल जाता है, द डोमेन नेम, और आईपी एड्रेस आपका रजिस्टर्ड हो जाता है. आफ्टर दैट पब्लिशिंग पे चलते हैं. As the name suggested, by publishing, it is the process of creating a website and placing it on the web server. कि जो आपने hosting की space ली है, अब सर्वर के ऊपर आपकी वेबसाइट को, कंटेंट को एंटर करवा दिया जाएगा, पब्लिशिंग करवा दी जाएगी. उसमें जितना भी टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, अदर टाइप ऑफ मीडियाज अवेलेबिलिटी ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, definitely it will be entered into the web server on your space with the name suggested with the web hosting. And it is the main aim to facilitate the communication simply by adding context through the styles, emotions, space, and your content, your betterment, each and everything on the web publishing. After that, your website will be released and dependent on the domain. If it is on the subdomain, तो subdomain में नजर आएगी. If it is on the world wide web domain, तो उसमें नजर आएगी. लाइक कमर्शियल है तो .com पे जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन की है तो .org पे जाएगी, गवर्नमेंट की है तो .gov पे जाएगी. अगर वो कोई भी ऐसी वेबसाइट है जो नेशनलाइज से रिलेटेड है तो NIC की भी हो सकती है. और इस तरह से होस्ट डोमेन आपके बदलते रहेंगे. अब हम देखते हैं कि इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, होस्टिंग और पब्लिशिंग. होस्टिंग जो है बेसिकली दिस इज द प्रोसेस है जो सर्वर पे आपको स्पेस दिलवाता है, और पब्लिशिंग है जिस स्पेस के ऊपर अपना ओरिजिनल कंटेंट जो है वो अपलोड करते हो. एंड होस्टिंग जो है जब आपको स्पेस प्रोवाइड करवा देता है, तो वो आपको क्यों स्पेस प्रोवाइड करवाता है, ताकि आप जो भी पोस्ट करने लगे हो उसके वेब पेजेस हों, अवेलेबिलिटी जितनी भी हो सारी स्पेस में सेव रहे. और जो पब्लिशिंग है वो पब्लिशिंग तब कर पाए जब आपके पास प्रॉपर स्पेस अनेबल हो, तो वो अनेबलमेंट उठा पाए. अलाउ करता है आपको कस्टमाइजेशन का, क्योंकि होस्टिंग है, स्पेस है,
आपको लॉगिन मिला हुआ होगा, चेंजेस करनी है, अपडेशन करनी है, एडिटिंग करनी है तो कर सकते हो। तो कस्टमाइजेशन के बाद बिगिनर टू एडवांस्ड लेवल जो प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा वो पब्लिशिंग के ऊपर आपको एंटर करवा दिया जाएगा कि कमर्शियलाइजेशन में किसकी एंट्री है। स्पेस इन द इंटरनेट फॉर द वेबसाइट एंड वेबसाइट अवेलेबल टू द डोमेन। डोमेन मिलता है जब तो पब्लिशिंग आ जाती है, जब आपको स्पेस मिलती है तो होस्टिंग आ जाती है। इट डज नॉट कम विद द प्री मेड वेबसाइट्स। कोई वेबसाइट्स ये नहीं है कि प्री मेड होती हैं जो आपका आप कोई बना के देगा, नो, बनानी पड़ेंगी आपको, तो फिर ही आपकी एंट्री हो सकती है। तो थीम होते हैं वेब पब्लिशिंग में कि जब आप बनाते हो, रेडीमेड भी है, बिल्ट इन टेम्पलेट्स भी हैं, जैसे फ्रंट पेज में अवेलेबिलिटी है टेम्पलेट्स की, बेसिक लैंग्वेजेस में पीएचपी में अवेलेबिलिटी है टेम्पलेट्स की बहुत ज़्यादा, जिसमें यूज़र को कम काम करना पड़ता है और जल्दी काम आपका हो जाता है। डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड द एचटीएमएल आपकी बेसिक लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपको कोड के ऊपर वर्क करना पड़ता है, बट व्हेन यू विल एंटर इनटू द कास्केडिंग स्टाइल शीट्स तो डेफिनेटली it will be hit into the ready-made templates also. It allows for the one-click install and customization to the self-host like WordPress है, Scalar है, Omeka है हमारे। और इसमें आपकी WordPress की अप्रोच होती है वो थीम और प्लगइन के बेस्ड होती है कि कई बार आपको PDF अपलोड करनी है तो PDF प्लगइन करनी पड़ेगी, आपको डेटा अपलोड करना पड़ेगा। मेन एम जो है वेब पब्लिशिंग का या वेब होस्टिंग का ये होता है कि स्टोरेज स्पेस देनी है, मेन इसका एम वेब होस्टिंग का, और उसका है कि कम्युनिकेशन आइडियाज़ देने हैं लोगों को। जो कंपोनेंट्स होते हैं इसके एफटीपी क्लाइंट्स है, डेटाबेस सर्वर है, एफटीपी सर्वर है, और उसके जो क्लाइंट्स होते हैं वो वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं, वो डिज़ाइन होते हैं। और जो अलाउ करती है हमें वेब होस्टिंग वो करती है वेबसाइट ऑनलाइन, प्रो टेक्निकल सपोर्ट भी देती है, मैम सिक्योरिटी भी देती है, मैनेजमेंट भी देती है। पब्लिशिंग के टाइम पे आप अपना जो डाटा है वो वेब पेजेस के ऊपर डाल सको। तो ये प्रोसेस है जो दोनों इंटरैक्टिव में वेब डिज़ाइनिंग, वेब होस्टिंग और वेब पब्लिशिंग आपस में इंटरेक्शन में जुड़े हुए हैं। Hope so that particular tutorial definitely will help you for the future growth, and kindly comment into the comment box that is helpful to you or not. And if you have any query, kindly comment into the comment box. The reply will be given definitely within the 24 hours, and the next video related with the internet topic come very soon on this channel. Till then, take care, thank you, and God bless you.